Hello students. So in the previous lecture we were talking about the nervous system, the brain. In short, we were talking about the animals. In this lecture we are going to talk about the movements that are found in the plants. Okay? So plants do not have a nervous system or a brain. So how do plants show movement? Okay? So let's put it down. Coordination in plants. ठीक है. So first point, plants do not have a nervous system or a muscle tissue. ये बात सबसे important आपको याद रखनी है. Do not have nervous tissue and muscle. This is what makes plants different from animal. Animals के पास क्या है, nervous tissue present है और muscles भी है, but यहाँ पे plants do not have nervous tissue and muscles. They do not have the ability to transmit the signal through the neurons. They do not have the ability to think. Brain नहीं है, pain है या कोई भी feeling की आप बात करते हो, if it's jealousy, if it's love, if it's pain, if it is hunger, if it is cold, the one thing that is responsible is the brain. So plants do not have the brain. So plants cannot have the pain. And that is the reason when you eat a plant, there is no pain to the plant. Okay? You cut them, they'll grow again. You cut them, they'll grow again. And it can continue. But if you talk about an animal, if you're eating an animal, the animal consists of a brain. So when you cut that animal to eat, there's a lot of pain to the animal. And that is the reason it is more legit to eat a plant compared to the animal. Because plants do not have pain while animals have. Now what is the reason behind that? Plants do not have a nervous system. Plants do not have a brain. But animals have a nervous system, have a pain, have a brain, so they can feel the pain. ठीक है? So do not have nervous tissue and muscles. दूसरी बात क्या आप इनके बारे में याद रखोगे कि यार फिर भी however they show movement. However, movement is observed the movement is observed. जो movement आपको observe करने को मिलेगी plants में, that is due to the chemical means to convey information. Plants use chemical means to convey information. Info लिख रहा हूं मैं. To convey info from one cell to another. ठीक है? So जो प्लांट में जो मूवमेंट है, movements in plant is broadly classified. However, movement in plant are broadly classified into two main groups. Are classified into two main groups or the two main types. So what are those two types? That is immediate response to stimulus and movement due to growth. Immediate response to stimulus and दूसरा movement due to growth.
ठीक है, इन शॉर्ट वी हैव अ टर्म फॉर इट कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट इज टर्म्ड एज नेस्टिक मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट कहा जाता है? नेस्टिक मूवमेंट कहा जाता है. और मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट. सो देयर इज नेस्टिक मूवमेंट एंड देयर इज ट्रॉपिक मूवमेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेस्टिक मूवमेंट. आई होप दिस इज क्लियर. सो प्लांट्स में दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड मसल. जिस तरीके से एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और मसल्स होते हैं वैसे प्लांट्स में नहीं होता है. तो जो आपने पढ़ा था कि न्यूरॉन सिग्नल भेज रहा है, जो सिग्नलिंग हो रही है, वो सब यहाँ पे नहीं होने वाला है. ब्रेन भी नहीं है. ठीक है. हाउएवर मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड. क्यों ऑब्जर्व हो रही है? किस तरीके से ऑब्जर्व हो रही है? सो प्लांट्स यूज केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर. केमिकल मीन्स तो अपन भी यूज करते थे, हॉर्मोन्स तो अपन भी यूज करते हैं, प्लांट्स भी हॉर्मोन्स यूज करते हैं. ठीक है. सो मूवमेंट इन प्लांट्स आर ब्रॉडली classified into two main groups, that is immediate response to the stimulus and the movement due to growth. Nastic movement and tropic movement. ठीक है. So if I talk about the immediate response to stimulus, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस की अगर बात करें, सो दैट इज विच मूवमेंट? नेस्टिक मूवमेंट. ठीक है. जैसे कि इट डज नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ. द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर द नेस्टिक मूवमेंट आर डज नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ. आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा. ओनली देयर इज गोइंग टू बी दी मूवमेंट. ओनली मूवमेंट इज ऑब्जर्व. ओनली द मूवमेंट इज ऑब्जर्व. ठीक है. does not involve growth and only the movement is observed. ठीक है. तो यहां पे how is it possible? तो plant use electrochemical means to convey signal. दो तरीके से हो सकता है ये. Plants use electrochemical means to convey signal to convey information from cell to cell. From cell to cell. ठीक है. दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि प्लांट सेल चेंज द शेप. प्लांट्स सेल चेंज shape by changing the amount of water in them. The amount of water in them. ठीक है. जैसे कि अगर सेल के अंदर पानी काफी ज्यादा है, the cell has more water, the cell would appear what? Turgid या फिर swollen. और अगर सेल के पास पानी नहीं है, less water. ठीक है. तो सेल कैसा दिखाई देगा? The cell would appear shrunk. ठीक है. तो यहां पे क्या? There is change in shape. तो यहां पे आप देख रहे हो प्लांट्स में यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, और द प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. ठीक है.
Simple and easy. So now let's talk about some of the movements. Nastic movements. जैसे कि if I talk about photonasty, or the photonastic movement. So photonastic movement, that is the movement of sunflower in direction of sun. Movement of sunflower in direction of sun. Only the flower is moving, not the whole plant. ठीक है? So that is a photonastic movement, that is movement of sunflower in direction of sunlight. ठीक है? दूसरा, there can be thigmonasty, that is touch. Thigmonasty movement. So that is, इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं मिमोसा प्लांट. कौन सा प्लांट? मिमोसा प्लांट. इन मिमोसा प्लांट व्हेन यू टच द लीव्स दे श्रिंक. क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट और द लीव्स दे श्रिंक. मूवमेंट ऑफ लीव्स when touched. This is thigmo. Thigmo is touch. So movement of leaves when touched. Okay, this is known as thigmonasty. Then there can be thermonasty. Thermo is temperature. So in some of the flowers they bloom at a particular temperature. तो यहाँ पे लिखिए blooming of a flower or opening of a flower at fixed temperature. This is known as thermonasty. So we have photonasty, that is movement of sunflower in the direction of the sun. Then there is thigmonasty, that is movement of leaves when touched. This is found in the mimosa plant. And thermonasty is blooming or opening of a flower at a fixed temperature. ठीक है? So यहाँ पे कहीं पे भी there is no growth. There is simply the movement of the sunflower. Movement of the leaves, opening of the flower, मतलब movement of the petals. ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हैं अपन movement of petals. ठीक है? Simple and easy. So these are the tropic movements. I'm sorry, these are the nastic movements. जहाँ पे सिर्फ आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी. नाउ द सेकेंड इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. मूवमेंट due to growth. So इस केस में the plant responds to a stimuli by growing in direction of that stimuli. Plant responds to a stimuli
by growing in direction of stimuli. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा इन सम प्लांट्स लाइक पी, pumpkin and cucumber, pea, pumpkin and cucumber की अगर बात करें तो इनके पास क्या होती है, टेंड्रिल्स होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ पार्ट, सम पार्ट, लेट्स से रॉड, तो एक टेंड्रिल क्या करती है, दिस टेंड्रिल्स दे वाइंड अराउंड द रॉड. क्या करेगी, वाइंड हो जाएगी. ठीक है, जैसे उसे रॉड मिलेगी उस रॉड के सपोर्ट पे इट वुड वाइंड. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो प्लांट होगा उसको सपोर्ट भी मिलेगा. तो यहां पे मैं लिखता हूं द ग्रोथ इज डायरेक्शनल. The growth is directional, so the plant appears moving or plant appears to be moving. ठीक है, so some of the movements अगर देखें अपन, so let's say if this is a particular plant, and this is the roots of the plant. ठीक है, this is the soil. तो जो roots होती है, roots they grow in the direction of gravity. They grow downwards. Yes or no? Roots show growth in direction of gravity. नीचे की तरफ ग्रो करती है. सो रूट्स में जो ट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है, दैट मूवमेंट इज टर्म्ड एज जियोट्रॉपिज्म. इट इज टर्म्ड एज जियोट्रॉपिज्म या फिर जियोट्रॉपिक मूवमेंट, बिकॉज रूट्स दे शो ग्रोथ इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. नीचे की तरफ ग्रो करती है. एक एक्सेप्शन है, जो मैंग्रोव्स होती है. दिस इज द एक्सेप्शन, रेड में लिखते हैं. इन मैंग्रोव्स द रूट grows towards, or root grows in opposite direction to gravity. यहां पे मैंने क्या बोला, नॉर्मली द रूट्स ऑफ द प्लांट दे ग्रो, they show growth in direction of gravity, and such a movement is known as geotropism or the geotropic movement. But in mangroves the root grows in opposite direction to gravity. एक ही exception case है. ठीक है, and why is this happening? Because for example ये water body है, तो जो mangroves होते हैं, mangroves की रूट इस तरीके से बाहर निकलती है.
ब्रीथ करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो वाटर है इस रूट के सराउंडिंग में, वाटर क्या है, काफी सॉल्टी है, बिकॉज वाटर is salty, roots come out of soil to breathe. ठीक है, मैंग्रोव्स के सराउंडिंग में जो पानी होता है वो क्या होता है, सॉल्टी होता है, इसलिए रूट्स बाहर आ जाती है टू ब्रीथ. सच रूट्स आर नोन एज न्यूमेटोपोर्स. Such roots are known as pneumatophores. ठीक है, और we can term them as breathing roots. This is an exception case. Normally the roots would grow in the direction of the gravity, but only in the case of mangroves they grow in the opposite direction to gravity. ठीक है, मतलब they are facing, they are going upwards, that is towards the sun. So we can say that the roots of mangrove show phototropism. Only the roots of mangrove shows phototropism, growing towards the sun, while the roots of the normal plant they show what? They show geotropism. ठीक है, एक और चीज है, roots they show growth in direction of water. Roots होते, फॉर एग्जाम्पल इफ ग्राउंड वाटर का सोर्स यहां पे, ठीक है, दिस एंड देयर इज लॉट ऑफ वाटर, तो रूट्स क्या करेगी, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी एंड दे वुड स्टार्ट ग्रोइंग टुवर्ड्स दैट वाटर बॉडी. दे वुड स्टार्ट ग्रोइंग टुवर्ड्स दैट वाटर बॉडी. ठीक है, सो रूट्स ऑल्सो शो ग्रो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर. इसीलिए रूट्स आर roots show hydrotropism as well. Root shows hydrotropism as well. ठीक है, तो रूट्स में आपको जियोट्रोपिज्म दिखेगा, रूट्स में आपको हाइड्रोट्रोपिज्म दिखेगा, एंड ओनली द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स वुड शो फोटोट्रोपिज्म. ठीक है, या फिर मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि रूट्स शो एज द रूट्स आर नॉट ग्रोइंग इन डायरेक्शन ऑफ सन. इसको छोड़ के, मैंग्रोव्स को छोड़ के, डू नॉट ग्रो, डू नॉट शो ग्रोथ इन डायरेक्शन ऑफ सन. तो अपन एक और टर्म यूज कर सकते हैं, इट शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म नहीं दिखा रहा है ना, तो वी कैन यूज द टर्म नेगेटिव. इट इज शोइंग नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म एंड द मैंग्रोव्स आर शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. क्लियर है? नाउ कोई भी प्लांट है, उसका जो स्टेम होता है वो हमेशा क्या करता है, सन की डायरेक्शन में ग्रो करता है. किसकी डायरेक्शन में ग्रो करता है, सन की डायरेक्शन में ग्रो करता है. अगर सन यहां पे अवेलेबल है, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो स्टेम का टिप है, इट वुड स्टार्ट बेंडिंग दिस साइड, इट वुड स्टार्ट बेंडिंग दिस साइड. तो आप देख रहे हो ग्रोथ इस तरफ हो रही, टुवर्ड्स द सन. तो मैं लिख सकता हूं, जो स्टेम होता है, स्टेम कौन सी ग्रोथ दिखाता है, it grows in
direction of sunlight. It grows in the direction of sunlight. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है दैट इज टर्म्ड एज फोटोट्रोपिज्म. क्या बोलेंगे इसको? दिस इज टर्म्ड एज फोटोट्रोपिज्म. ठीक है, so if the plant shows the stem of the plant that grows in the direction of the sun, तो जो मूवमेंट है यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रोथ और मूवमेंट दोनों दिखेगा आपको. दिस इज टर्म्ड एज फोटोट्रोपिज्म बिकॉज दिस इज ग्रोइंग एज वेल एज मूविंग. ठीक है, द रूट्स दे शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बिकॉज दे डू नॉट ग्रो in the direction of sunlight. They grow in the direction of water, that is hydrotropism, or they grow in the direction of the gravity, that is geotropism. Only the roots of the mangroves, they show phototropism because the water in which they are located, it is very salty. So to breathe, they pop out of the soil and they grow erect. So this is termed as phototropism. Now एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके ऊपर जब पोलन आके सेटल होता है तो यहां से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्या करता है? पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. पोलन ट्यूब इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओव्यूल. यहां पे क्या हो रहा है? पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स. मतलब ग्रोथ due to the chemicals. Chemotropism, that is growth of pollen tube in response to chemicals released by ovule. In response to chemicals released by ovule. ठीक है, तो यहां पे जो पोलन ट्यूब है वो मूव करके जा रही है कहां पे? जहां पे केमिकल रिलीज हुआ था. तो सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज टर्म्ड एज chemotropism. So there is phototropism, there is hydrotropism, there is geotropism, there is केमोट्रोपिज्म एज वेल. ठीक है, एक और है जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था आपको, टेंड्रिल का जो फॉर्मेशन होता है, पी है, ककुम्बर है, उनके केस में जैसे ही उन्हें सपोर्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रॉड लगी है और जो प्लांट है उसका स्टेम वीक है, तो उस केस में जो टेंड्रिल्स बनेंगे वो क्या करेगी? इस रॉड के ऊपर वाइंड अप हो जाएंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रीपर्स और द क्लाइंबर्स. तो दे आर ग्रोइंग व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ अ सॉलिड मटीरियल. So we have a term thigmotropism, that is growth of plant parts in response to stimulus. Okay, this is found in, क्या बात कर रहे थे अभी अपन? क्रीपर्स, पी, पंपकिन एंड ककुम्बर को आप एग्जांपल में ले सकते हो. जिन प्लांट्स में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, आपने देखा होगा अपने घर पे आप मनी प्लांट लगाते हो तो मनी प्लांट भी क्या करता है? ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है. ठीक है, अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो क्लाइंब नहीं कर पाएगा, ठीक से ग्रो नहीं करेगा. मतलब मनी प्लांट शोज थिग्मोट्रोपिज्म, दैट इज टच. क्लियर है?
Now, plants also show chemical communication. Plants में केमिकल कम्युनिकेशन भी देखने को मिलता है. जैसे अपनी बॉडी में हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से केमिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. प्लांट हार्मोन्स आर टर्म्ड एज फाइटोहार्मोन्स. प्लांट हार्मोन्स आर टर्म्ड एज फाइटोहार्मोन्स. ठीक है. तो यहां पे होगा क्या कि प्लांट का कोई स्टिमुलेटेड पार्ट जहां पे स्टिमुलाई आती है वो क्या करेगा, हार्मोन्स को रिलीज करेगा. क्या करेगा, हार्मोन्स को रिलीज करेगा. सो द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स आर, द फाइटोहार्मोन्स आर, वन ऑफ देम इज ऑक्सीन. ऑक्सीन, it's a phytohormone. So auxin, it is produced in the tip of the shoot. Produced in the shoot tip. ठीक है, produced in the shoot tip and helps them to grow longer when plants are placed facing a light source. Helps the shoot to grow longer when placed facing sunlight. ठीक है, जैसे कि अगर ये कोई प्लांट है और ये प्लांट का टिप है, शूट टिप है, और सन अगर यहां पे है तो सन की रेज जब प्लांट पे इस बाजू पड़ेगी तो प्लांट का जो अपोजिट साइड है, मतलब ये वाला जो साइड है, यहां पे हार्मोन का प्रोडक्शन होगा. ठीक है, जैसे कि ये अगर टिप में दिखा रहा हूं, ये टिप है, तो अगर सनलाइट यहां पे इंसिडेंट है फेसिंग दिस सनलाइट, तो हार्मोन जो है उसका प्रोडक्शन किस बाजू होगा, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन का प्रोडक्शन इस बाजू होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इट हेल्प्स द शूट टू ग्रो लॉन्गर. तो यहां से ग्रोथ होना चालू होगी, और यहां से ग्रोथ होना चालू होगी, मतलब जो शूट है वो बेंडिंग दिखाई देगी, आपको बेंडिंग करके दिखाई देगी. कहां पे, टुवर्ड्स दी सन. यहां पे था, मैंने बताया आपको. अब क्या होगा, यहां पे बेंडिंग आपको ऑब्जर्व होगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है. दिस साइड ऑक्सीन इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज लीडिंग टू द ग्रोथ, जिसकी वजह से आपको बेंडिंग देखने को मिलेगा. ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा शूट टिप shows bending towards sunlight. It shows bending towards the sunlight. ठीक है, अब क्यों बेंडिंग टुवर्ड्स सनलाइट, क्योंकि ऑक्सीन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस कहां हो रहा है, टुवर्ड्स द अपोजिट साइड जहां पे लाइट इंसिडेंट है. तो मैं लिखता हूं यहां पे, this is because the oxygen diffuses towards the shady side of the shoot. Oxygen is produced towards the shady side of shoot,
ठीक है, स्टिमुलेटिंग द सेल्स, stimulating the cells to grow longer। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं अगर कंफ्यूजन है तो। अगर ये टिप है स्टेम का और यहाँ पे सन है, इंसिडेंट लाइट इधर है, तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन क्या होगा? इस बाजू नहीं होगा, ऑक्सिन का फॉर्मेशन इस साइड होगा, और वो यहाँ के सेल्स को क्या कर देगा? लंबा कर देगा, सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। ठीक है, अब लॉन्गर होने की वजह से क्या होगा? ये जो टिप है, ये टिप इस तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फोटोट्रोपिज्म एज वेल डन। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन। तो इस तरीके से क्या होगा? आपका जो स्टेम है, जो टिप है, स्टेम की लेंथ है, वो ग्रो करने लगेगी। द सेकेंड फाइटोहॉर्मोन वी हैव इज गिबरेलिन्स। Second is gibberellins. ठीक है, गिबरेलिन्स की अगर बात करें, this hormone helps the plant in the growth of stem and flowers. Helps in growth of stem and flowers। ठीक है, ऑक्सिन टिप को लंबा करने के काम में आ रहा था, स्टेम की लेंथ बढ़ाने के काम में आ रहा था, और यहाँ पे गिबरेलिन्स क्या कर रहे थे? हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर्स। ठीक है, अनदर हार्मोन दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर बात करें, so they promote cell division, they promote मतलब सेल को डिवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। they promote cell division and highest amount of cytokinin is observed in fruits and seeds। है ना, सीड्स में तो आपको पता होगा, सीड से तो नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो नया प्लांट अगर आपको ग्रो करना है सीड में से, तो वहां पे सेल डिवीजन तो होना ही चाहिए। इसीलिए सीड में एंड फ्रूट्स में देयर वुड बी ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ साइटोकाइनिन। फिर we have abscisic acid। अभी आप देख रहे हो, मैंने ऑक्सिन की बात करी तो ऑक्सिन क्या कर रहा है? ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। गिबरेलिन्स की बात करी, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। साइटोकाइनिन की बात करी, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। मतलब अगर हर एक हार्मोन प्लांट प्रोड्यूस करेगा और वो हार्मोन अगर ग्रोथ को ही प्रमोट करेगा, प्लांट को ग्रो करने में ही हेल्प करेगा, तो प्लांट तो काफी ह्यूज हो जाएगा। ट्रीज वुड बिकम वेरी ह्यूज, दे वुड टच द स्काई। पर ऐसा होता है क्या? नहीं, दे हैव अ लिमिटेड ग्रोथ। ट्रीज और द प्लांट शोज limited growth because they also produce a hormone that inhibits the growth। सब हार्मोन ग्रोथ बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। there are hormones which inhibit the growth and those hormones are abscisic acid। तो यहां पे मैं abscisic acid में क्या लिखूंगा? it's a growth inhibitor। क्या करेगा? ग्रोथ को रोकेगा। तो जो आपको प्लांट में एक चीज देखने को मिलता है, जो लीव्स उसके विल्ट हो जाते, फोल्ड हो जाते हैं,
यहाँ पे मैं लिखूंगा causes wilting of leaves. It causes wilting of leaves. ठीक है, क्लियर है? एक और हार्मोन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, दैट इज इथाइलिन. कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन, विच इज अ गैसियस हार्मोन विच हेल्प्स इन द रिपनिंग ऑफ फ्रूट. ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोक रहा है, बाकी के ग्रोथ बढ़ा रहे थे. फिफ्थ, ठीक है, इथाइलिन की अगर बात करते हैं, सो इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लो अमाउंट. मैं लिखता हूं कौन सा हार्मोन है? इज द गैसियस हार्मोन. ठीक है, आपको याद रखना है इथाइलिन के बारे में कि वो गैसियस हार्मोन है. ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन लोअर अमाउंट्स. प्रोड्यूस्ड इन वेरी लो अमाउंट्स. ठीक है, और काम क्या करता है? इट हेल्प्स इन रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स. जो फ्रूट्स पकते हैं उनको पकाने का काम कौन करता है? इथाइलिन, विच इज अ गैसियस हार्मोन. आपने देखा होगा, आप जब मैंगोज लाते हो मार्केट में, तो मार्केट में से तो काफी बार आप ट्री से पहले प्लग कर देते हो और फिर उसको स्टोर कर लेते हो. तो आप जब ट्री के ऊपर से मैंगोज को निकाल लेते हो ना, तो होता क्या है? इथाइलिन हार्मोन वहां पे नहीं आ पाता है. जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा था इथाइलिन, विच वॉज अ नेचुरल रिपनिंग हार्मोन, वो अवेलेबल नहीं, क्योंकि आपने तो मैंगो पहले से तोड़ दिए. ठीक है, तो अब मैंगो पकेगी कैसे? तो उसको पकाने के लिए आप केमिकल यूज करते हो जिसे कहा जाता है कार्बाइड. ठीक है, यू यूज दोज केमिकल पाउचेस जो आप मैंगो उसके साथ रख देते हो, फिर क्या होगा? मैंगोस पकने लगेगी. ठीक है, तो इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन. प्लस एक और चीज ये करेगा, जैसे कि एक देयर इज अ फार्म, बिग फार्म ऑफ मैंगो, तो एक मैंगो जब रिप होने लगेगी एक मैंगो ट्री पे, तो वो जो हार्मोन है गैसियस हार्मोन, वो क्या करेगा? गैसियस है तो स्प्रेड होता रहेगा फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, अनदर प्लांट टू अनदर. तो होगा क्या? दिस इज गोइंग टू ट्रिगर द रिपनिंग ऑफ द मैंगोज इन द होल फार्म. मतलब पूरे फार्म में मैंगो का जो रिपनिंग का प्रोसेस है, पकने का प्रोसेस है, साथ में होगा. क्यों? क्योंकि इथाइलिन प्रोड्यूस हुआ है. इथाइलिन क्या करेगा? धीरे धीरे स्प्रेड होगा, तो पूरे फार्म में साथ में मैंगो का रिपनिंग होगा. ठीक है, सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट नास्टिक मूवमेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट, and we have talked about the phytohormones or the plant hormones. So majority of the plant hormones, they are promoting growth, but there are some which are causing inhibition, that is abscisic acid. And one of the hormone, ithylene hormone, that is produced in very low amount. Okay, it is helping in the ripening of the fruits. Okay, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about the hormones in the humans or the hormones in the animals. ठीक है, सो गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. और जब आप लेक्चर देखो तो आपको नोट्स बनानी है, और नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करना है. थैंक यू सो मच.